ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के प्रतिभाओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने 15 अगस्त को देखा था कि बच्चों ने लाल किला और चौमुहान को दर्शाया था, लेकिन आज इस एग्जीबिशन में बच्चों ने पूरा डाल्टनगंज को ही प्रदर्शित कर दिया। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सदिक मंजिल चौक, चौमुहान और हर जगह रेलवे स्टेशन, मरीन ड्राइव, सब कुछ इन्होंने प्रदर्शित किया है एक ये छोटे से एग्जीबिशन में। तो इन बच्चों के जो कारस्तानी हैं, जो चीज़ें हैं, वो काबिल तारीफ़। मैं इन बच्चों से बात करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर इन बच्चों ने क्या क्या किया है। और डिप्टी मेयर को और हम लोग को भी योगदान देना है ताकि हमारी सिटी आने वाले समय में स्मार्ट सिटी बने। एंड दिस इज आवर फूड, दिस इज जिला न्यायालय फूड डिस्ट्रिक्ट एंड the students of Green Valley, and this is our project, A Man as a Giant. As you're remembering that, why this is written there, A Man is a Giant? Because the man is the real cause of these things. Man is the culprit, man is responsible for all these things. No any other comes and spread the garbages. We the humans spread the garbages, and due to which this man has become as a giant. In our home, we can't, there is many diseases. Man in our home, one person is also suffering from many diseases. What is the cause of diseases? Garbage. And who is responsible for this? We the people are responsible for this. Here we have shown it is the result of our carelessness which results into a giant. You can see that this giant has so many legs. Some legs are inside the dustbin. Means these legs are inside the dustbin, they are burning. Means this giant is destroying. And if this giant is destroying, means we ourselves, our city is clean. And you can see there are many garbages which are spreading here and there. This is the real cause of diseases. Our responsibility is to clean all the garbages and put it into a real place. As you can see here, they are too much. We have characterized the dustbin and the columns. You can see that this is the dustbin for plastic. You know that plastic is non-biodegradable waste. They never mix with the soil, so they can recycle again and again. You can use that plastic again. Now this is dustbin for e-waste. E-waste means electronic waste. Electronic waste. Now we all in our homes have some electronic equipment, and they also produce waste. Means that electronic equipment can be recycled again and again. And this is paper waste. As you know that paper can be recycled again and again. And we cut trees, so many trees for making paper. If we can recycle this again and again, no need to cut the paper, cut the tree. And this is organic waste. Means there are so many organic waste which are produced in our home. So you can use this like vegetable peels, etc. We can use to make this manure. Like farmers use now at the time harmful chemical fertilizers which are destroying our soil. You can use this manure, so it will good for our soil, and it is eco-friendly in our nature. Next we have shown here the deputy mayor of our town, that is Aruna Shankar. खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज स्कूल ग्रीन वैली कौन से क्लास में पढ़ते हैं? ये क्या समझाना चाहते हैं परामुवास में? ये एक गार्बेज रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। इससे हम अब जो हम सामान खरीदते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकलिंग करने को समझाना चाहते हैं। जैसे कि जो हमारे शहर में से जो वेस्ट निकलता है, पहले हम उसे सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि कागज़, प्लास्टिक, मेटल्स, बायोडिग्रेडेबल। इस फैक्ट्रीज में हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक गार्बेज को, जैसे कि प्लास्टिक को पहले हम मेल्ट करेंगे, उससे हम कुछ ना कुछ टॉयज़, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा चीज़ बना सकते हैं। फिर मेटल्स को हम लोग मेल्ट करके उससे यूटेंसिल्स, किचन का यूटेंसिल्स, मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा बना सकते हैं। अगर आप मूल्य की जोड़ें तो एक अगर आप एल्युमिनियम का कैन बनाते हैं तो उतना ही मूल्य का 20 रिसाइकल एल्युमिनियम कैन बना सकते हैं। इससे एनर्जी एवं कॉस्ट प्राइस दोनों कम पड़ता है। सर, आज नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पे जो पखवाड़ा लगा वो मन मोहने वाला था, और जो बच्चों का दृश्य था, एग्जीबिशन था, वो बिल्कुल चकित करने वाला था। पलामू के बच्चों ने दिखाया है 2 शब्द इस एग्जीबिशन के लिए।
बहुत बेहतर किया है और पूरे समाज को, मेदिनीनगर को, अपने देश को एक मैसेज दिया है कि हम अब कैसे अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस अवसर पे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा नगर निगम का जो स्टाफ है और हमारा जो परिवार है, हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने शहर को साफ़ और सुथरा बनाएं और इसमें हम समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे इस मुहिम में आप भी सहयोग करें और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल का इस एग्जीबिशन में एक पायदान जो बच्चों ने दिखाया वो दांत तले चने चबाने लायक था। जो बच्चों ने सिखाया वो हमें सीखना चाहिए। 2 शब्द उन बच्चों के लिए। बच्चे ने सबसे पहले तो आज निगम द्वारा एक सुंदर सा स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम में एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चे ने इस बात को दिखाया कि हम सब लोग मिलकर डाल्टनगंज नगर निगम को स्वच्छ अपने विद्यालय के शिक्षक श्रवण सर ने एक म्यूजिक कंपोज किया, गाना गाया और उस गाना को यहाँ के उपस्थित सारे जो दर्शक थे, अधिकारी थे, सब लोगों ने बहुत सराहा है। विद्यार्थियों ने इस एग्जीबिशन में जाइंट ऑफ गार्बेजेज ऐसा करके मैन जाइंट ऑफ गार्बेजेज व्यक्ति जो है वो कूड़े करकट का अंबार का राक्षस है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश किया है। इस जो कूड़ा करकट का हम आज शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का जो हम शिकार बनते चले जा रहे हैं, अस्वच्छता का जो शिकार बनते चले जा रहे हैं, ये किसी दूसरे जीव और जंतुओं से उत्पन्न नहीं हो रहा है बल्कि इंसानों से हो रहा है और हम इंसान लोगों से उत्पन्न कर रहे हैं। और इसी चीज़ को बच्चों ने भी दिखाने की कोशिश किया है। ए मैन इज अ जाइंट ऑफ गार्बेजेज, ए मैन इज अ माइंड्स ऑफ गार्बेजेज, ए मैन इज ओनली काउज ऑफ गार्बेजेज, ऐसा कुछ बच्चों ने दिखाने की कोशिश किया और इसे 3rd प्राइज भी मिला है। और निगम के पदाधिकारियों ने बहुत सराहा है बच्चों के इस मॉडल्स को, इस आकार को, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम लोगों ने इस तरह के आयोजन में बहुत तगड़ा और बहुत शानदार प्रदर्शन को करने की कोशिश। आपने 15 अगस्त में सिर्फ 6 मुहान दिखाया था, आज बच्चों ने पूरा मेदिनीनगर दिखा दिया, इस पे क्या कहना है? एक्चुअली डाल्टनगंज नगर निगम में जितना आकर्षक विकास हो रहा है, जगह जगह को कई महत्वपूर्ण स्थानों को बहुत अच्छे से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा जा रहा है। विद्यार्थियों ने मॉडल के रूप में तैयार किया है। मिस महात्मा गांधी मार्ग, शहीद चौक, भारत माता चौक, विवेकानंद चौक, मैरीन ड्राइव, अंबेडकर पार्क और ये जो गांधी उद्यान है, इन सारी चीज़ों को जो विकसित किया जा रहा है, बच्चे ने इसका बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त मॉडल को बनाने की एक छोटे से आकार में कोशिश किया है, जिसे पदाधिकारी और दर्शकों ने बहुत सराहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चों के अंदर भी रचनात्मक सोच पैदा हो रहा है, उन्हें भी अवसर मिल रहा है। निगम के पदाधिकारियों को इस सुंदर से प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन